Assalamu alaikum students, this is Shazia Rana, your English teacher and vice principal, and we are going to have our session number 8 and we are going to cover chapter number 7, that is King Faisal. So let me share the screen with you. The time is 9:08 a.m. Okay children, the screen is in front of you. King Faisal. Who is King Faisal? King Faisal is the personality from Saudi Arabia. So let's talk about this personality in detail. Before explaining each and everything, let me guide you about his age and his journey. King Faisal is the personality from Saudi Arabia. After showing you the pictures, then I will be talking to you in detail about the personality. Okay. This is the picture of this personality when he was 6 years old. This was the personality of the same when he was 14 years old. This was the personality when he was 19 years old. When he was 26 years old. He worked as army officer as well. He turned 40 years. He went to many international visits. He was very famous internationally, by the way. This was the picture drawn by a painter. Okay, so let's talk about this personality. This personality is from Saudi Arabia, and he was the famous personality in Muslim, among the Muslims, that he was actually the one who was worried for Muslims, and he want all the Muslims to become one nation. He have worked very hard for Saudi Arabia. He worked tirelessly for Saudi Arabia and for Muslim nation as well. So let's talk about his journey. Let's talk about the lesson now. Children, I have to cover the lesson, so that's why I'm hiding my screen, okay? King Faisal. The late King Faisal of Saudi Arabia was born in 1907. King Faisal Saudi Arabia से थे और उनकी पैदाइश हुई थी 1907 में and was second son of King Abdul Aziz ibn Saud. किंग अब्दुल अजीज जो कि सऊदी अरब के इनसे पहले किंग थे, उनके ये दूसरे बेटे थे. He received religious education from his maternal grandfather Sheikh Abdullah bin Abdul Latif. इन्होंने अपनी मजहबी तालीमात अपने नाना से हासिल की, जो इनकी मदर के फादर थे, मैटरनल ग्रैंडफादर. उन्होंने अपनी मजहबी तालीम अपने नाना से हासिल की. After completing his education at an early age, Faisal started taking interest in the affairs of the state and helped his father in governing the country. अपनी तालीम के शुरू के सालों में ही किंग फैसल ने अपने फादर के साथ मुल्क की मामलात में मदाखलत शुरू कर दी. मतलब पॉजिटिवली उन्होंने मदाखलत शुरू की और वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगे अपने फादर के साथ कंट्री को गवर्न करने में, कंडक्ट करने में.
He was made governor of Hijaz when he was only 20. उनको हिजाज का गवर्नर बना दिया गया था जब वो सिर्फ 20 साल के थे। क्या वजह थी? क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र से ही अपने फादर के साथ मुल्की मामलात में हेल्प करवाते थे। तो 20 साल की उम्र में उनको हिजाज का गवर्नर बना दिया गया। हिजाज मक्का सऊदी अरब की एक स्टेट है। लेटर ऑन ही सर्व्ड एज सऊदी फॉरेन मिनिस्टर। इसके बाद उन्होंने एक फॉरेन मिनिस्टर की तरह से भी काम किया। विजिटिंग सेवरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड where he held important discussions and gained a great deal of experience. बहुत जल्द जब वो 22 या 23 साल के थे उनको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया, जहां वो बहुत से कंट्रीज में उन्होंने विजिट किया और बहुत सी ऐसी डिस्कशंस की और ऐसे तजर्बात हासिल किए जो कि इस उम्र में बहुत कम देखने में आते हैं। He also had the opportunity of holding the command of the armed forces of his country. उनको ये मौका भी मिला कि वो अपनी कंट्री के आर्म्ड फोर्सेस को भी कमांड कर सकें। उन्होंने अपनी कंट्री की आर्मी को भी कंडक्ट किया। किंग फैसल एक ऐसी पर्सनालिटी है बेटा जो कि बहुत ही छोटी उम्र से प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए थे और अपने फादर के साथ जो है वो मुल्की मामलात में को देखा करते थे। जब वो ये सब कुछ देखते थे तो जाहिर है कि उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक्सपोजर बढ़ गया तो वो चीजें आसानी से हैंडल करने लगे। इसलिए बहुत छोटी उम्र में ही उनको गवर्नर बना दिया गया है और फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया, जिसमें कि उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन किया। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग अब्दुल अजीज जो कि उनके फादर थे, उनकी डेथ के बाद his eldest son Saud became the king. उनके बड़े बेटे जो थे वो किंग बन गए। फैसल was made the crown prince and prime minister in 1958. किंग फैसल को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। सऊदी अरेबिया was in serious difficulties at that time. उस वक्त सऊदी अरब जब ये 1958 की बात हो रही है, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 80 इयर्स पुरानी बात ही, शायद 70 इयर्स पुरानी बात है। सऊदी अरेबिया उस वक्त बहुत शदीद मुश्किलात में था। फैसल used his wisdom and intelligence to overcome these difficulties. मिस्टर फैसल जो कि अब किंग फैसल कहलाते हैं, उन्होंने अपनी अक्लमंदी और अपनी जहानत को इन मुश्किलात को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया। In 1960 he resigned from the post of the prime minister but accepted it again in 1960. उन्होंने 1960 में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया था, लेकिन 2 साल के बाद उनको दोबारा ये ऑफर की गई तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। His elder brother King Saud fell seriously ill in 1964 and Faisal was chosen as the king by the Council of Ministers. 1964 में उनके बड़े भाई बहुत शदीद बीमार हो गए और किंग फैसल को चूज किया गया टू वर्क एज किंग बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जितने भी वजीर थे उन सबके मशवरे से ये चीज डिसाइड हुई कि चूंकि बड़े भाई बहुत शदीद बीमार हैं, इसलिए फैसल को कंट्री का किंग बनाया जाए। और उनको किंग बनाने की एक वाहिद वजह यही थी कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे और वो अपनी अक्लमंदी से बहुत ज्यादा मुश्किलात को हल करने की सलाहियत रखते थे। Yes, Huma, you were saying something? No, ma'am. Your mic is constantly on, but please mute it. Okay. After the death of King Abdulaziz, I'm so sorry, I'm changing the slide, okay? King Faisal was devoted to Islam. किंग फैसल शुरू से ही इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने खिदमत की थी। He was a good Muslim and led a simple life. वो एक अच्छे मुसलमान थे और उन्होंने बहुत ही सादा जिंदगी गुजारी। He did his best to see his people live according to the teachings of Islam. वो ये देखते थे कि क्या लोग इस्लाम की तालीमात के मुताबिक रह रहे हैं या नहीं। He possessed great qualities of leadership and proved to be an able ruler. उन्होंने बहुत सारी क्वालिटीज अपने लोगों को अपने काम के जरिए दिखाई, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई और साबित किया कि वो एक अच्छे हाकिम हैं। He loved his people and ruled the country wisely and justly under his rule.
वो अपने लोगों से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने अपने मुल्क को, अपने कंट्री को बहुत अक्लमंदी और दानिशमंदी से चलाया। सऊदी अरेबिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन मेनी फील्ड्स। सऊदी अरेबिया ने उस वक्त, जब वो बहुत मुश्किल हालात में था, किंग फैसल की क्राउनिंग के बाद, सऊदी अरब मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन मेनी फील्ड्स। सऊदी अरब ने बहुत सारी जगहों पर बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल की। He spent a lot of money on the development of his country. उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया। The main source of income for Saudi Arabia is mineral oil. सऊदी अरेबिया के पास जो बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा पैसा आया, वो कहाँ से आया? जो सऊदी अरेबिया ने अपना मिनरल ऑयल सेल किया। एंड ही मेड एवरी एफर्ट टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन। और उन्होंने हर तरीके से एफर्ट की कि इसकी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा की जाए। और आप सब जानते हैं बेटा कि मिडिल ईस्ट जो है वो मिनरल ऑयल उसके पास बहुत ज्यादा है, वो पूरी दुनिया को सेल करता है और पैसा कमाता है। New factories and mills were set up in Saudi Arabia and industry made great progress. नई से नई फैक्ट्रीज लगाई गई सऊदी अरेबिया में ताकि ऑयल को स्टोर किया जा सके। एंड इंडस्ट्री मेड ग्रेट प्रोग्रेस। और इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया। Vast areas of the desert were irrigated and new lands were brought under cultivation. Desert, Saudi Arabia is a desert. Vast area of the desert were irrigated. Irrigation क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो पानी के चलाने का जो सिस्टम होता है उसको इरिगेशन कहते हैं। डेजर्ट का एक बड़ा एरिया, उसके अंदर पानी गुजारने के रास्ते बनाए गए। एंड न्यू लैंड्स वर बॉट अंडर कल्टीवेशन। और जो नई जमीनें बनाई गई उस डेजर्ट को हटा के, वहां पर काश्तकारी भी शुरू की गई। वहां पे पौधे, फलों के दरख्त और ये सारा कुछ भी लगाया गया। एंड इट्स वर्किंग। ये अगर डेजर्ट में वो ये एफर्ट्स कर सकते हैं, तो हम तो यहाँ पाकिस्तान में बहुत सी एफर्ट्स कर सकते हैं। दैट इज एक्चुअली द ब्रेन, द माइंडसेट व्हिच द किंग फैसल वाज हैविंग, दैट एनीथिंग इज पॉसिबल। वो हर चीज को करते थे और बहुत अक्लमंदी से करते थे। उन्होंने डेजर्ट के अंदर पानी का निजाम लगाया और जमीनों में कल्टीवेशन यानी कि काश्तकारी शुरू करवाई। ओके। फैसल considered education very important for the progress of his people. किंग फैसल समझते थे कि एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है लोगों की प्रोग्रेस के लिए। ही ओपन मेनी स्कूल्स वेयर एजुकेशन इज फ्री फॉर ऑल। उन्होंने बहुत से ऐसे स्कूल्स ओपन किए जहाँ पर लोगों के लिए एजुकेशन फ्री थी। He set up several universities where students are not only given free education but are also awarded stipend to meet other needs as well. उन्होंने ऐसी यूनिवर्सिटीज भी शुरू की जहाँ पर लोग मुफ्त तालीम हासिल करते थे। ना सिर्फ मुफ्त तालीम, बल्कि उनको वजीफा भी मिलता था जहाँ पर वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। He also spread a network of hospitals and dispensaries all over his vast kingdom. उन्होंने अपनी बादशाहत में बहुत सारे हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज भी कायम किए। Now a Bedouin living even 1,000 kilometers from the capital will find a hospital or dispensary not far from where he lives. अब उस डेजर्ट में, सऊदी अरेबिया जैसे डेजर्ट में हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी ढूंढना इतना मुश्किल नहीं रहा। इफ यू विजिट KSA, अगर आप किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया विजिट करें, the kingdom of Saudi Arabia, you will find hundreds of Pakistanis, doctors, nurses and teachers serving their Arab brethren. अगर आप कभी सऊदी अरेबिया जाएं तो आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, नर्सेस जो हैं वो ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। और वहाँ पर जो टीचिंग सेक्टर काम कर रहा है, वहाँ पर भी बहुत ज्यादा टीचर्स as from Pakistan they are working. King helped the needy and the poor and provided many facilities to the pilgrims. King ने जो हाजी वहां पर आते थे हज करने के लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की। और उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पिंग हैंड क्रिएट किया। He had a strong wish to unite the Muslims of the world and did his best to bring the Muslim living in different countries close together. वो ये चाहते थे कि दुनिया के तमाम मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे हों। वो मुसलमानों के लिए परेशान होते थे, उनकी तकलीफ का एहसास करते थे और वो ये चाहते थे कि दुनिया के तमाम मुसलमान
मिलजुल के रहें. His services in making the Muslims conscious of the need for brotherhood can never be forgotten. जो उन्होंने आपस में मुसलमानों को भाइयों की तरह रहने के लिए बार बार कहा था, एफर्ट्स की थी, वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती. वो बहुत ज्यादा फोर्स करते थे मुसलमानों को कि अलर्ट रहो और मिलजुल के रहो. It is now the duty of the Muslims to continue his struggle for the achievement of this unity. अब ये मुसलमानों का काम है कि उन्होंने जो एफर्ट्स की हैं, किंग फैसल ने जो एफर्ट्स उनके लिए की हैं, उनको याद रखें. He practiced what he preached and assisted the Muslim countries of the world. He was an equal partner with Pakistan in holding the Islamic Summit Conference in Lahore in 1974. 1974 में लाहौर में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कि पाकिस्तान के साथ पार्टनर किया था किंग फैसल ने सऊदी अरब की तरफ से. King Faisal was a sincere friend and well-wisher of the people of Pakistan. King Faisal पाकिस्तान के well-wisher थे और बहुत अच्छे दोस्त थे. He gave generous help to this country on several occasions. उन्होंने पाकिस्तान की बहुत से मौके पर मदद भी की है. Perhaps no one outside Pakistan could be more unhappy than King Faisal was on the separation of East Pakistan, which is now Bangladesh. वो पाकिस्तान से और पाकिस्तानी लोगों से इतना प्यार और इतनी दोस्ती थी कि जिस वक्त उन्होंने ये सुना कि पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश अलग हो गया है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए. वो बहुत नाखुश हुए थे इस बात पे कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए. He was against the state of Israel. वो बावाज़े बुलंद इसराइल के अगेंस्ट थे और पूरी दुनिया में वो इसके बारे में बात करते थे. बिकॉज ऑफ इट्स एनमिटी टुवर्ड्स द अरब्स, क्योंकि इसराइल जो है वो अरब से नफरत करते थे. इस वजह से उन्होंने बहुत बार दुनिया में इस बात की आवाज उठाई थी कि वो इसराइल की स्टेट के अगेंस्ट हैं. He strengthened the Arabs in their war against Israel. उन्होंने अपने तमाम अरब्स को मजबूत किया ताकि वो इसराइल के खिलाफ कभी जंग हो तो लड़ सकें. He felt deeply grieved when Israelis set the Al-Aqsa Mosque on fire. वो इंतहाई रंजीदा और दुखी हुए जब इसराइल ने मस्जिद अल-अक्सा को जला दिया था. He made every possible effort to get back the Arab territories under the illegal occupation of Israel. उन्होंने अपनी सी पूरी कोशिशें की और वो कामयाब भी हुए कि वो अरब हुदूद को वापस ले सकें जो कि इसराइल के पास इलीगली कब्जे में थी. उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो सारी टेरिटरीज वो वापस लें, उन्होंने वापस ली हैं. The great king died in an assault by a wicked nephew of his on 25th March 1975. बहुत अच्छे इंसान थे किंग फैसल. बहुत अच्छे फैसले उन्होंने किए, सऊदी अरेबिया के लिए बहुत काम किया. लेकिन उनकी फैमिली में ही उनके एक नेफ्यू थे जो कि एक मक्कार शख्स थे. उन्होंने 25 मार्च 1975 को गोली मारकर उन्हें शहीद कर दिया. The Muslims all over the world mourn on his death. पूरी दुनिया में दुख और तकलीफ था जिस वक्त किंग फैसल की डेथ की खबर आई. The people of Pakistan in particular feel deep grief at this sad news. इस बुरी खबर के बाद पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा रंजीदा हुए. There was not a single house in Pakistan which did not mourn on his death. कोई भी घर ऐसा नहीं था जहां पर उनकी डेथ पर लोग तकलीफ में ना आए. He lived like a soldier and died a martyr. वो एक सोल्जर की तरह जिंदा रहे और एक शहीद की तरह दुनिया से गए. With his death, not only Saudi Arabia but also the whole Muslim world has lost a sincere and bold leader. उनकी डेथ के बाद पूरी दुनिया ने ये रियलाइज किया कि एक हमदर्द और बहादुर इंसान इस दुनिया से जा चुका, बहादुर लीडर इस दुनिया से जा चुका. He was the religious leader of the Muslims and the guardian of two holy places of Makkah and Medina. वो मक्का और मदीना का ख्याल रखने वाले यानी कि उनके गार्जियन भी थे और मुसलमानों के लिए एक मजहबी रहनुमा भी थे. The Muslims of the world who have great love and respect for him will remember him as a noble and pious Muslim leader
and his name shall live forever in their hearts. लोग उनको हमेशा याद रखेंगे और किंग फैसल का नाम उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा. Okay, children, this was the lesson from your book, and that is really a heart-touching story of King Faisal. we all should learn what King Faisal have taught us. He was a bold leader. He have made us learn so many things, and if we do not follow that, that will be our loss. Saudi Arabia is the country that was in a poor state in 1958, but he have taken over it and uh, make it pass through the difficulty and had so many new and he brought so many new things in the industry, and he used the mineral oil as a tool, and he nourished his country by having a strong millions of factory number of factories over there, and still they are earning from that. So let's talk about the summary. I have explained each and everything in the lesson, so you are supposed to go through the summary when I will be sending you the PowerPoint presentation, but let me just go through it for a while. Actually, the point is that King Faisal have put in a lot of efforts to unite the Muslims. उन्होंने मुसलमानों को जमा करने के लिए बहुत सी कोशिशें की. To create unity among Muslims and to unite them on one page, on one platform, the main aim of King Faisal. मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना किंग फैसल का एक सबसे बड़ा ख्वाहिश थी, मकसद था. उन्होंने रियलाइज किया, he realized that only solution of this problem which the Muslim world is currently facing lies in togetherness among the Muslim. वही कहते थे कि मुसलमानों को इस वक्त जितनी भी मुश्किलात दरकार हैं मौजूद हैं मुसलमानों के पास, उन सब से निकलने का आसान रास्ता यही है कि वो सब जमा हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं. He provoked the need of brotherhood among the Muslims. उन्होंने कहा था कि आपस में भाईचारे की फिजा कायम करो, so the third person cannot enter among you. cannot enter among you. उन्होंने कहा कि सब लोग मिलजुल के रहो तो किसी तीसरे शख्स की मजाल नहीं होगी कि वो आपको आके परेशान कर सके. He chose the right path to save the Muslims from the devastation. उन्होंने मुसलमानों को अलग होने से बचाने के लिए बहुत से सही रास्ते इख्तियार किए. The best example is his continuous struggle against the Israeli occupation of the Arab territories. इसराइल के खिलाफ जो उन्होंने जंग की थी उसका जो सबसे बड़ा सबूत है वो ये है कि उन्होंने इसराइल से जंग करके अपनी अरब टेरिटरीज उससे वापस ले ली थी, और वो पूरी दुनिया में बबांगे दहल इसराइल के खिलाफ जो है वो अपनी नफरत का इजहार किया करते थे. Okay, I am showing you a video over here so you can see it. Okay. The Dorchester Hotel was almost a Saudi Arabian palace in the latter part of the state visit of King Faisal. His Majesty's ambassador in London held a reception there, welcoming the distinguished guests, among them Mr. Arthur Bottomley and Mr. Patrick Gordon. Representing the opposition, Mr. Quintin Hart. A very special greeting for 10-year-old Abdul Bari. The boy had been one of the first to welcome the king on his arrival. When King Faisal visited the Islamic Cultural Center,
He prayed at the mosque there, but first concerned himself with the secular interests of the centre. All the leading Saudi Arabian personalities in London were in attendance, the ambassador, of course, included. At Guildhall, King Faisal was the honoured guest of the Lord Mayor and Corporation of the City of London. Duchess of Kent, with her husband, represented the royal family. In this historic place, the King was at the very heart of the British financial complex. Everyone in the distinguished company was aware that Britain's assets in Saudi Arabia amount to nearly £2,000 million. In itself, a weighty argument for continued friendship. During his short visit, King Faisal has emphasized that Britain's continued support of South Arabian Federation is essential. Independence, he says, is useless if it cannot be maintained. The City of London added its own tribute to the general appreciation of King Faisal's highly successful state visit. London. The daughter. Okay, children. Yes, children, have you gone through the documentary? This was the personality of King Faisal. He was a true leader, he was a true Muslim, and he wanted all the Muslims to unite and work together. वो एक अच्छे इंसान थे, एक मजहबी रहनुमा थे, बहुत अच्छे उन्होंने लाइफस्टाइल उनका जो था वो बहुत सादा था, उन्होंने ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजारी, बहुत सी टीचिंग्स दी, सऊदी अरेबिया को उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली किया, सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स की, पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त थे वो, पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत सी जगहों पे बहुत सी खिदमात की, बहुत ज़्यादा हेल्प किया, पाकिस्तान में वो पार्टनर भी रहे एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में, मुसलमानों के लिए वो एक मजहबी रहनुमा की हैसियत रखते थे और वो मुसलमानों को बहुत सी तालीमात देते थे कि सब लोग मिलजुल के रहें ताकि कोई और आपको तकलीफ ना दे सके। इसी तरह से इसराइल के अगेंस्ट वो बाबांगे दहल जो है वो नफरत का इजहार करते थे और इसराइल के खिलाफ उन्होंने जंग करके अपनी टेरिटरीज भी उनसे वापस ली। He was the most successful and brave leader of the world and people are still keeping him memorized in their brains. आज भी लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से याद करते हैं। Children, I am concluding the session over here and after 5 minutes I will be connecting again for the exercise. Okay, so just stay tuned for 5 minutes. We'll be right back. So Allah Hafiz for 5 minutes.